بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیوٹر کلاس 9 لیکچر نمبر 11۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے لینگویج ٹرانسلیٹرز۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی پروگرامنگ لینگویجز کی، اور اس کے اندر ہم نے یہ جانا تھا کہ پروگرامنگ لینگویجز جو مدر ٹنگ ہے، جو کمپیوٹر کی اپنی زبان ہے، وہ تو مشین لینگویج ہے جس کو کمپیوٹر سمجھتا ہے، لیکن پروگرامر کی سہولت کے لیے جو کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں، انجینئرز ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، اسمبلی لینگویج انٹروڈیوس کرا دی، ہائی لیول لینگویج انٹروڈیوس کرا دی۔ اب پرابلم از دیٹ کہ کمپیوٹر تو صرف کس کو سمجھتا ہے، مشین لینگویج کو، لیکن ہم اس سے بات اگر کریں ہائی لیول لینگویج میں، جو کہ انگلش لائک ورڈز اپنے اندر لیے ہوئے، تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر چاہیے۔ جیسے میں اگر کسی عربی بولنے والے سے بات کروں گا تو بیچ میں ہمارے درمیان ایک ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا جو میری زبان اردو کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں تبدیل کرے، وہ عربی بولنے والا اس بات کو سمجھے، رپلائی کرے، اور ٹرانسلیٹر جو ہے اس عربی زبان کو واپس اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے سمجھا دے۔ تو ٹرانسلیٹر کا کردار جس طرح سے ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی دو مختلف لینگویج والے بندوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو ایک ٹرانسلیٹر بیچ میں درکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کمپیوٹر سے کوئی کام لیں گے، اس کو کوئی ہدایات دیں گے، اور وہ ہدایات اگر آپ نے اس کی مشین لینگویج، اس کی زبان میں نہیں دی ہیں، آپ نے اس کو اسمبلی لینگویج میں یا ہائی لیول لینگویج میں دی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو لینگویج ٹرانسلیٹر چاہیے ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ لینگویج ٹرانسلیٹر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو وہی بات کہی جا رہی ہے کہ کمپیوٹر کیونکہ نہیں سمجھتا کوئی اور زبان مشین لینگویج کے علاوہ، یعنی ہائی لیول لینگویج کو وہ نہیں سمجھتا ہے جس میں اگر آپ انسٹرکشن اس کو دیں گے، کیونکہ کمپیوٹر کی اپنی ایک زبان ہے مشین لینگویج، جو کہ بائنری لینگویج 0 اور 1 کہلاتی ہے۔ تو پروگرام جو بھی آپ بنائیں گے ہائی لیول لینگویج میں یا اسمبلی لینگویج میں، اس کو لازمی ٹرانسلیشن چاہیے مشین لینگویج میں، اس سے پہلے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو، وہ پروگرام رن ہو، وہ پروگرام پلے ہو۔ تو آپ اس کو لازمی ٹرانسلیشن کے عمل سے گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹرانسلیٹرز اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ٹرانسلیٹر کیا ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ذہن میں رہے کہ یہ کوئی ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ ٹرانسلیٹرز آر دا پروگرامز، یہ پروگرامز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں دیٹ آر یوز ٹو کنورٹ سورس پروگرام انٹو آبجیکٹ پروگرام۔ اب یہ سورس پروگرام اور آبجیکٹ پروگرام انشاءاللہ اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈفرینس بھی سمجھیں گے، لیکن یہاں مختصراً جان لیں، سورس پروگرام وہ پروگرام ہے جو مشین لینگویج کے علاوہ کسی بھی زبان میں لکھا گیا۔ مشین لینگویج کے علاوہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوا پروگرام سورس پروگرام کہلاتا ہے، جبکہ آفٹر ٹرانسلیشن جب وہ مشین لینگویج میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ آبجیکٹ پروگرام کہلاتا ہے۔ تو ٹرانسلیٹر یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے سورس پروگرام کو کنورٹ کر دیتے ہیں آبجیکٹ پروگرام میں، یعنی مشین لینگویج میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر ہم بات کریں کتنے طرح کے ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں، تو دیر آر 3 ٹائپس آف لینگویج ٹرانسلیٹرز۔ نمبر 1 assembler, number 2 interpreter, and number 3 is compiler۔ آئیے ہم باری باری ان کو جانتے ہیں، ان کی ڈیٹیل کو۔ سب سے پہلے اسمبلر کی اگر ہم بات کریں تو اسمبلر جیسے کہ آپ کو اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ اسمبلی لینگویج کے پروگرام کو مشین لینگویج میں تبدیل کرنے کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ Assembler is a program that converts an assembly language program into machine language، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ مختلف قسم کے ورژنز موجود ہیں اسمبلی لینگویج کے، اسی طریقے سے ہر کمپیوٹر مختلف ورژنز آف اسمبلی لینگویج کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ماڈل میں جب فرق آتا ہے تو اسمبلی لینگویج جو کہ ویری کلوز ٹو مشین لینگویج ہی ہے، تو اس کے اوپر مختلف ورژن کی اسمبلی لینگویج اپلائی ہوتی ہے، اور ہر کمپیوٹر کی اپنی یونیک اسمبلی لینگویج ہے۔ اسی اعتبار سے اگر اسمبلی لینگویج 1.1 ہے بالفرض، تو اسمبلر 1.1 استعمال ہوگا۔
असेंबली लैंग्वेज 1.7 वर्जन है तो असम्बलर 1.7 इस्तेमाल होगा, ठीक है। इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट इज रिटन इन सिंबॉलिक कोड्स जो कि नेमोनिक्स कहलाते थे, ये बात हमारी पहले गुजर गई। तो असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए प्रोग्राम को सिंपली हम असेंबलर कहते हैं, ये ट्रांसलेटर असेंबलर कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर वो ट्रांसलेटर है जो कि एग्जीक्यूट करता है हर प्रोग्राम स्टेटमेंट को वन एट अ टाइम। अगर आपने 10 लाइन पर मुश्तमिल कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो पहली लाइन को उठाएगा, मेमोरी में लोड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और उसका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। फिर उसके बाद वो मेमोरी में दूसरी प्रोग्राम स्टेटमेंट लोड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और उसका रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ऐसे ही वन आफ्टर अनदर वो प्रोग्राम स्टेटमेंट उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट का वर्ड खास कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है जब कोई आप इंस्ट्रक्शन को प्ले करते हैं, किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई प्रोसेस रन होता है तो उसके लिए एग्जीक्यूट का लफ्ज यूज होता है, ठीक है। नंबर 2, आफ्टर एग्जीक्यूशन द ट्रांसलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट जो है वो रिमूव हो जाती है मेमोरी से और अगली स्टेटमेंट लोड हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया भी कि एक वक्त में एक प्रोग्राम स्टेटमेंट मेमोरी में रहती है। इंटरप्रेटर की अगर हम बात करें, ये नॉर्मली शॉर्ट प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए सूटेबल है। मतलब आप लर्निंग पर्पस से प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो और आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बार बार ट्रांसलेशन कर रहा है या स्लो ट्रांसलेशन कर रहा है, तो ऐसे पर्पस में इंटरप्रेटर वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन इंटरप्रेटर, ये बात भी जहन में रहे कि ज़बान जिसने बनाई है वो हाई लेवल लैंग्वेज जिसने बनाई है वो ही उसका ट्रांसलेटर उसका बनाता है, ठीक है। तो वो उसका ट्रांसलेटर बनाता है, हर ज़बान का अपना अपना ट्रांसलेटर, ठीक है। और यहाँ ये बात बताने से रह गई, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है। हमने असेंबलर की बात की थी कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज होता है, तो इंटरप्रेटर किसके लिए यूज होता है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है और हर प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने इंटरप्रेटर हैं। GW बेसिक की आप जो कि क्लास 9 में पढ़ेंगे भी, GW बेसिक हैज़ एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम। GW बेसिक इंशाल्लाह क्लास 9 में आप इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर के ज़रिए ट्रांसलेशन करती है। यहाँ थोड़ी सी ये बात भी जहन में आपको मैं बता दूँ, आपके ले आऊँ कि अगले चंद लम्हों में हम कंपाइलर को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। लेकिन स्टूडेंट जहन में ये बात रहे कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर ये हमारा इंतखाब नहीं है। हम फैसला नहीं करते कि नहीं जी हम असेंबलर यूज़ करेंगे, हम इंटरप्रेटर के ज़रिए ट्रांसलेशन करेंगे या हम कंपाइलर यूज़ करेंगे। लैंग्वेज बनाने वाले ने अगर उसकी ट्रांसलेशन के तरीक़ेकार में असेंबलर रखा है तो असेंबलर के ज़रूर ट्रांसलेशन होगी। अगर उसने इंटरप्रेटर टेक्निक के तहत ट्रांसलेशन को रखा है तो इंटरप्रेटर ही यूज़ होगा, और अगर उसने कंपाइलर टेक्निक के ज़रिए ट्रांसलेशन रखी है तो कंपाइलर यूज़ होगा। मैं रिकॉल करा दूँ आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज का ही प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में तब्दील करने के लिए इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है और इसका काम एक लाइन को एक वक्त में ट्रांसलेट करना है और उस ट्रांसलेट किए हुए जो कोड है, मशीन कोड है, उसको ये महफूज भी नहीं करता अपने पास। मेमोरी में फ़कत सिर्फ ये एक वक्त में एक प्रोग्राम स्टेटमेंट रखता है, ट्रांसलेट करता है, उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। जबकि इसके बरखिलाफ अगर हम बात करें कंपाइलर की, तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए ही बना है, मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। लेकिन ये ईच हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। और कंपाइलर क्या कर रहा है, ये थर्ड पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि फ़र्क भी बता रहा है आपको
इंटरप्रेटर के हवाले से कि कंपाइलर ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम इनटू मशीन, पूरे प्रोग्राम को बैक वक्त ट्रांसलेट करता है एंड मेक अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल। आपको बार बार ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती, वो एक दफ़ा पूरी ट्रांसलेशन करने के बाद उस ट्रांसलेटेड फाइल को सेव कर लेता है और उसी को बार बार यूज़ करते हुए रिजल्ट डिस्प्ले होता रहता है। बार बार ट्रांसलेशन की जहमत से हम बच जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटर की बात तो हो गई कि वो लर्निंग पर्पस से या बिगनर्स के लिए है, जबकि कंपाइलर जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर ऐसी लैंग्वेजेस में जुड़ा होता है, या हम जब प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं तो कंपाइलर वाली लैंग्वेज का इंतखाब उस वक्त करते हैं कि हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए होता है जो कि फ्रीक्वेंट ट्रांसलेट करना। अब जब फ्रीक्वेंट या बार बार ट्रांसलेशन और रन करने की ज़रूरत पेश आएगी और वो इंटरप्रेटर की तरह हर दफ़ा ट्रांसलेशन करेगा तो वक्त ज़ाया होगा। तो ऐसे में कंपाइलर को वाली लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर आपकी ट्रांसलेटेड फाइल को सेव भी कर लेता है और बार बार उसी ट्रांसलेशन को यूज़ करता है। अच्छा स्टूडेंट, मैं इधर एक थोड़ी सी दिलचस्प आपको रियल वर्ल्ड की सिचुएशन बता दूं। फर्स्ट कर लें, कोई तकरीर अरबी में हो रही है, जुमे का खुतबा मस्जिदुल हराम में अरबी में हो रहा है और उसकी आप उर्दू समझने वाला बंदा ट्रांसलेशन अगर सुन रहा है तो दो तरीक़ाकार ट्रांसलेशन के उधर हो सकते हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है कि जहाँ वो खतीब जो है वो एक जुमला मुकम्मल करता है अरबी का, वहीं उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आप सुन लेते हैं। ठीक है, एक तरीक़ाकार तो ये है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आप उसकी सुनते जा रहे हैं, तो ये इंटरप्रेटर वाला तरीका कहलाएगा। इंटरप्रेटर टेक्निक से उस अरबी खुतबे को उर्दू में आप सुन रहे हैं। जबकि यही इसके मुकाबले में एक दूसरा तरीक़ाकार ये हो सकता है कि पूरा खुतबा मुकम्मल हो जाने के बाद उसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन एक उर्दू में आपको मुहैया कर दी जाए या सुना दी जाए। ये जो ट्रांसलेशन का तरीक़ाकार है ये कंपाइलर टेक्निक का है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी और आप इसको बार बार सुन के अच्छी तरीके से रिकॉल करें। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।